Well, days after taking a dig at Yogi Adityanath and his entire cabinet for taking a dip, the holy dip at the Mahakumbh, Akhilesh Yadav has also visited the Mahakumbh. And after taking a holy dip in Mahakumbh, the Samajwadi Party chief has hit out at the Yogi cabinet yet again. Akhilesh Yadav saying that Mahakumbh is not a sports event and Kumbh is a holy event. That's the statement that has come in from Akhilesh Yadav. He continues to criticize the Yogi government, saying arrangements could have been better because the Samajwadi Party government had organized a much better version of the Kumbh. Listen in. कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं, अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। संकल्प यही है कि सौहार्द बना रहे, सद्भावना बनी रहे, सहनशीलता हो और जो भी स्नान हो सहनशीलता के साथ स्नान होना चाहिए। ये सरकार के लोगों को कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बनाना चाहिए इसको। समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। अगर आयोजन 1300 करोड़ में अच्छा हो सकता है, 800 करोड़ में अच्छा हो सकता है, तो 10,000 करोड़ में, 7,000 करोड़ में कितना अच्छा हो सकता है। कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। और फिर जैसे हम हैं वीआईपी या और हैं वीआईपी या और सम्मानित लोग जब आए तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे कुंभ को पता लगे कि हाँ आज कोई वीआईपी है जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। My colleague Akanksha is joining us live from Prayagraj, and she has been a part of Kumbh and the politics that has been witnessed time and again with the Samajwadi Party, time and again deriding the arrangements that have been made for the Kumbh Mela. Akanksha, days after calling Yogi Adityanath and the cabinet chapri for taking a holy dip at the Mahakumbh and insulting the Kumbh time and again, Akhilesh Yadav taking a holy dip. Akanksha, if you can hear me, Akhilesh Yadav has taken a dip at the Mahakumbh, and after his dip at the Sangam, he has continued to criticize the Yogi government, saying that the government is treating it like a sports event. Well, absolutely. Today is the 14th day of Mahakumbh Mela, and today Akhilesh Yadav, Samajwadi Party chief, has taken holy dip here, and he has said that the government, the UP government, should not make this into a sports event. He also went on to say that several, in fact, older people are coming to Mahakumbh Mela, and the facilities here and the management here is not that well. Remember, in the last 14 days, Samajwadi Party and the Congress Party, both in opposition here in Uttar Pradesh, they've been raising questions on management of Mahakumbh Mela, questioning the number of devotees who are coming to Mahakumbh Mela. Till now, 11 points, more than 11 crore people have come to Mahakumbh Mela for holy dip. They've also questioned the mismanagement, the number of people who have come. Last time when UP cabinet ministers and the UP chief minister were here for holy dip, they had called it a photo op. And now today, after taking the holy dip, Akhilesh Yadav has taken a jibe at the UP government. He has said that this should not be made into a sporting event, and he has also questioned the management of the Mahakumbh Mela, which he, along with his other party leaders, this is something that they've been claiming is out of place. Okay, all right. So they have been claiming that the arrangements are not up to mark, and interestingly, Akhilesh Yadav continued to say that while he took a dip as well. But just, you know, rewinding back to a few days when the Yogi cabinet had taken a dip, Akhilesh Yadav and the Samajwadi Party had taken a dig at Yogi Adityanath from calling the cabinet members chapri for being in the water, while also saying that people of Uttar Pradesh don't want holy dips, they want jobs. These were the kind of digs that were taken by the Samajwadi Party. We have breaking updates now coming in. Akanksha, do stay on with us. Yet another post coming in from the Samajwadi Party media cell, and it has continued to criticize Yogi Adityanath. In fact, this tweet now says that the chief minister should learn the rituals from the Samajwadi Party chief.
So it doesn't end with Akhilesh Yadav taking a dig and then criticizing the arrangements. Now the Samajwadi Party media cell, in fact, has posted that Yogi Adityanath should take tips and should learn the rituals from the Samajwadi Party chief. My colleague Sagrika is joining us on the broadcast with the update. Yes, Sagrika. Seems like the Samajwadi Party, Pratibha, has forgotten that Yogi Adityanath is not just the Chief Minister of Uttar Pradesh, he is also the Mahant of the Gorakhnath Mutt. And they are in fact talking about a Mahant, accusing a Mahant of not knowing rituals and saying that Yogi Adityanath should learn rituals from Akhilesh Yadav. But coming back to what has been happening over the last few days, Okay. you know, when the criticism was on, what did Akhilesh Yadav say? If you remember, Pratibha, he said that for some people this holy dip is so sacred and it's so personal that they don't even post pictures. And he was talking about leaders of the Samajwadi Party, possibly even talking about himself. But just look at how the Samajwadi Party went ahead and posted all the pictures of Akhilesh Yadav. Not the first time, even the pictures of his holy dip in Haridwar was also posted. Now coming back to what they've been saying, I'm reading a translated version of their post. Samajwadi Party media cell says, by taking 11 dips in the Prayagraj Mahakumbh is a devout and religious manner. That is Akhilesh Yadav. He's paid his respects to Ma Ganga and bowed down to her and also bowed to Lord Surya. So CM should learn manners of bathing in Ganga. Biggest point that has been mentioned. Sagrika, I request you to stay with us. Rakesh Tripathi is also joining us on the broadcast. Rakesh Tripathi ji, Akhilesh Yadav ने डुबकी लगाई है संगम में, महाकुंभ में, और उन्होंने समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने कहा है सीएम योगी को गंगा स्नान का तरीका और तमीज श्री अखिलेश यादव जी से सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी ने आज कम से कम देर से पहुंचे, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि अब वो कुंभ को लेकर के जो नकारात्मकता फैला रहे थे, जो अब तक नेगेटिविटी फैला रहे थे, अब वो कम से कम उससे परहेज करने का काम करेंगे, क्योंकि मां गंगा में स्नान करने के बाद चित्त शांत होता है, मानसिक शांति मिलती है। हमें उम्मीद करते हैं कि अब उनको मानसिक शांति मिलेगी और कुंभ को लेकर के जो अफवाहें फैला रहे थे, जो झूठ बोल रहे थे, अब वो झूठ फैलाने का क्रम बंद करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जितनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं दिव्य कुंभ के लिए, भव्य कुंभ के लिए, कम से कम उसको व्यवस्थाओं को स्वीकार करेंगे और आज सकारात्मक उसकी सराहना करने का काम करेंगे। लेकिन उनका निशाना अभी भी योगी सरकार पर है। उन्होंने ये कहा है कि दिखावे के लिए नौटंकी करते हैं सीएम योगी। उन्होंने कहा है कि जो अरेंजमेंट्स है कुंभ के लिए वो अच्छे से नहीं हुए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे से हुए थे, अभी इट्स नॉट अप टू मार्क। देखिए, दुनिया जानती है वर्ष 2013 में जब उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कुंभ हुआ था तो कैसे अखिलेश यादव जी सैफई महोत्सव में खलल न पड़ने पाए। इसके लिए उन्होंने आजम खान को कुंभ का इंचार्ज बना दिया था और कुंभ के इंचार्ज रहते हुए 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की भगदड़ में मौत हुई थी। वो कुंभ अव्यवस्था का प्रतीक बना था। उस कुंभ में कितनी समस्याएं हुई थी ये श्रद्धालु, ये यात्री सब जानते हैं। और आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद से उत्तर प्रदेश ने प्रयाग को जिस तरह से विकसित करने का काम किया है, जितनी चौड़ी सड़कें देने का काम किया है, कुंभ को लेकर के जिस तरह की व्यवस्थाएं बनाने का काम किया है, दुनिया भर से आज जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, जो डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, वो उसकी तारीफ करने का काम कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे लगता है अखिलेश यादव से सर्टिफिकेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि संगम में स्नान करने के बाद, मां गंगा में स्नान करने के बाद शायद उनके भीतर की नकारात्मकता कम हो और वो इसको सकारात्मक रूप से देखना प्रारंभ करें। जी राकेश जी बने रहिए हमारे साथ। अनुराग भदौरिया ऑफ द समाजवादी पार्टी इज आल्सो विद अस। अनुराग भदौरिया जी, कल तक समाजवादी पार्टी कह रही थी कि ये नौटंकी है, हम फोटो नहीं लगाते। अभी अखिलेश यादव जी ने डुबकी लिया है। व्हाट कॉज दिस चेंज ऑफ हार्ट? देखिए, राजनीति करना और श्रद्धा दोनों में फर्क है। हम आस्था के नाम की राजनीति नहीं करते हैं। हमने डुबकी लगाई, हमने बताया जो हमारी श्रद्धा है उसको हमने अपने श्रद्धा निभाई। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, पूरी की पूरी सरकार कैबिनेट की वहाँ मीटिंग करने की क्या जरूरत है भाई? वो राजनीतिक जगह थोड़ी है। आपको राजनीतिक फैसले लेने तो है ना। यहाँ लगाई तो आपने कहा कि छपरी कह दिया आपके मीडिया सेल ने। अब जब अखिलेश जी ने डुबकी लगा दिया तो आप उससे हटके आप कह रहे हैं कि वहां मीटिंग क्यों कर दिया? आपके समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने ट्वीट किया है कि दिखावे के लिए नौटंकी करते हैं सीएम योगी। आप सवाल पूछ रहे हैं कि आप प्रवक्ता हैं? पहले बता दीजिए। आप सवाल भी पूछ रहे हैं, आप मुझे अटैक करेंगे तो उससे तो समाजवादी पार्टी का कुछ होगा नहीं। आप ये बता दीजिए कि पहले जो समाजवादी पार्टी कह रही थी और अब में ऐसा चेंज क्यों आ गया है? बात कर रहा था, सुनिए ना, मैं बीजेपी की बात कर रहा था। आपको कहाँ अटैक किया? मैं तो आपका नाम भी नहीं जानता हूँ। मैं आपको अनुराग भदौरिया जी, आप ही का समाजवादी पार्टी मीडिया सेल एसपी की ही है ना? समाजवादी पार्टी का ही है ना?
अरे मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आप मैं सवाल परेशान पूछ रहे नहीं हैं हो कि रही हूँ, आप अचानक चिंता मत प्रवक्ता बन कीजिए, गई आप चिंता मत अरे कीजिए, मैं अरे एकदम चिंता परेशान आप नहीं हो कर- रही हूँ। अब नहीं, आपकी जो आपकी मीडिया नौकरी सेल ने सुरक्षित है, ट्वीट मुझे किया ना, बोलने उस पे दीजिए। मैं पूछ रही हूँ आपसे। हाँ, तो मैं अनुराग उसी भदौरिया जवाब दे जी, रहा हूँ, तो आप क्यों मुझे चिल्लाने बोलेंगे, लगे? उससे आपको कुछ नहीं मैंने मिलेगा। अगर आपको आपके कहाँ पास बोला उत्तर नहीं आपको? है, जो अब मैंने अखिलेश आपको यादव ने कहाँ चेंज बोला? कर दिया है, मैं बोल उसका रहा अगर था, आपके मेरा पास उत्तर सवाल नहीं है, तो आप अरे वो आप कह दीजिए। रनिंग कमेंट्री कर रही हैं, अब चुप अच्छा रहेंगे तो चलिए, सवाल का जवाब आपके मिलेगा। पास उत्तर रनिंग है कमेंट्री अनुराग करेंगे। भदौरिया जी, आपके पास उसका अरे उत्तर है कि रुकिए ना, पहले जो देखो आपने ऐसे कहा है अगर कि दिखावे के लिए, नौटंकी के लिए सीएम योगी गए थे, ये कहा है समाजवादी सुन पार्टी लीजिए। मीडिया हाँ, सेल ने। हाँ, अब हाँ, क्या जवाब बदल सुन गया है, लीजिए। वो बता दीजिए। अरे जवाब सुन लीजिए और चुपचाप रहिएगा। अगर आप सवाल अगर आप पूछेंगे तो जवाब मेरे बारे सुनने में की बात लीजिए। करेंगे तो मैं आपको जरूर जवाब अरे मैं दूंगी। अगर आपके बारे में क्यों बात जो करूंगा? प्रश्न है उस जब पे आप जवाब चुप रहिए दीजिए। ना, एक मिनट। अनुराग आप चुप भदौरिया जी, रहिए, जो मुझे प्रश्न बोलने है दीजिए। अगर आप उस पे जवाब देंगे तो मैं जरूर अरे सुनूंगी। अगर आप भाई, मुझ पे बात कर रहे हैं तो कि बात आप मेरी पे नहीं क्यों हो रही, बात करूंगा अखिलेश भाई? यादव की हो आपको रही है। चिंता है क्या? आप पे बात करूंगा? बड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आप अपने आप को। मैंने अच्छा आपकी बात ही चलिए, नहीं की राकेश आपसे त्रिपाठी बच्चे जी, क्या हो गया है अनुराग बात कर रहा भदौरिया है। जी? यूजुअली ही इज ऑलवेज डिफेंडिंग द समाजवादी पार्टी, वो आज डिफेंड तक नहीं कर पा रहे हैं। ही सीम्स टू बी टेकिंग इट आउट ऑन मी। क्या हो गया है? है कि अनुराग भदौरिया को आज इस बात का पश्चाताप होना चाहिए। उनको इस बात के लिए आज क्षमा याचना करनी चाहिए कि वर्ष 2013 का जो कुंभ था, उस कुंभ की व्यवस्थाएं क्या थी। और अनुराग भदौरिया को तो मैंने स्वयं भी देखा है कि ये कुंभ में स्नान करके आए हैं और वो जो हरा कुर्ता पहनते हैं, वो हरा कुर्ता त्याग दिया इन्होंने, वहां जाकर के पीला पहन लिया है, भगवा पहन लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अनुराग भदौरिया अपने मानसिक तौर पर भी अपने आप को शांत करें। अनुराग भदौरिया इस बात को महसूस करें कि कुंभ को लेकर के आज किस प्रकार की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने। अभी आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं कि वहां कुंभ में बैठक क्यों कर ली। कुंभ में तो साधु सज्जन बैठे हुए हैं ना, वहां दुर्जन नहीं पहुंचते हैं। वहां जो अच्छे लोग हैं, सज्जन तत्व हैं, वही वहां पहुंचते हैं। वहां कथाएं होती हैं, वहां वार्ता होती है, विकास को लेकर चर्चा हो रही है। देश को बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए अगर चर्चा होती है, कुछ निर्णय होते हैं, तो इसकी तो प्रशंसा की जानी चाहिए। क्या वहां कैबिनेट की बैठक में किसी प्रकार का कोई राजनीति से कोई प्रेरित किसी के लिए कोई षड्यंत्र बताया है? क्या किसी की नकारात्मक आलोचना की है? अगर प्रयागराज को 4 लेन का अगर कोई पुल दिया है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए भाई। अनुराग भदौरिया सकारात्मक राजनीति नहीं देखना चाहते हैं, ये केवल हल्ला बोल करना चाहते हैं, केवल नकारात्मकता फैलाना चाहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि आज अखिलेश यादव ने भी डुबकी लगाई है तो उनके भी मन को शांति मिले, उनको भी मानसिक शांति मिले और वो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कम से कम सराहना करें कि कितनी दिव्य और भव्य व्यवस्थाएं आज महाकुंभ में की गई हैं। Okay, all right. Rakesh Tripathi ji, thank you for joining us. The Samajwadi Party refused to answer though and said that Chief Minister Yogi Adityanath should learn how to bathe in the Ganga. That's a tweet that has come in from the Samajwadi Party. Political reactions coming in because the Samajwadi Party finds itself in a spot. Just days ago, it was criticizing Yogi Adityanath for the holy dip, now advising the Chief Minister on how the dip should be taken. Listen into the political reactions. स्नान करने जा रहे हैं आज, क्या कहेंगे? मैं तो बधाई दूंगा कि कम से कम सलाहकार बदल लिया। नहीं तो शकुनी मामा थे तो रोज उल्टा ही होता था। आज कम से कम लगता है कि क्रिस जैसे सलाहकार कोई मिल गया है जो उस प्रयागराज की धरती, मतलब निषाद राज की धरती, उन लोगों को तो एक ईंट भी 70 साल में नहीं दिया था विपक्ष ने निषाद राज के किले पर। और सौभाग्यशाली हम लोगों ने जिस जो जंगल को काट के मंगल बनाया और 56 फुट की भगवान राम निषाद राज की मूर्ति ली, वह स्वर्ग की भूमि है। प्रयागराज एक संगम है, मतलब गंगा जमुना का संगम, मतलब एक होता है। राजनीति का मतलब ही एक करो और एक करो सेफ करो नेक करो, तो अगर उससे बढ़िया कौन स्थल हो सकता है। और जहाँ दुनिया के लोग सीखने आ रहे हो तो हर राजनीति से परे उठकर हमें वहाँ जाकर दुनिया के लोगों का एक अभिवादन करने का अवसर है। माननीय अखिलेश जी अगर गए प्रयागराज जा रहे हैं तो मैं अपनी सरकार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। मैंने अपील भी की थी कि वो प्रयागराज की धरती निषाद राज की धरती है, राजनीति से परे उठकर उस कम से कम निषाद राज के वंशजों का क्षेत्र है वहाँ आए और आगे उठाएं और 18% आबादी निषाद राज के लोगों को नाराज न करें, बल्कि So political leaders all smile after Akhilesh Yadav decided to take a holy dip at the Mahakumbh. But interestingly, even after that dip, he had some advice for the Yogi government and he spoke about the arrangements, some criticism for the government as well. Listen in to what he said. कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं, अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। संकल्प यही है कि सौहार्द बना रहे, सद्भावना बनी रहे, सहनशीलता हो और जो भी स्नान हो सहनशीलता के साथ स्नान होना चाहिए। ये सरकार के लोगों को कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बनाना चाहिए इसको। समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी
कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। अगर आयोजन 1300 करोड़ में अच्छा हो सकता है, 800 करोड़ में अच्छा हो सकता है, तो 10,000 करोड़ में, 7,000 करोड़ में कितना अच्छा हो सकता है। कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। और फिर जैसे हम हैं वीआईपी या और हैं वीआईपी या और सम्मानित लोग जब आए, तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे कुंभ को पता लगे कि हाँ, आज कोई वीआईपी आया जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। But the politics does not end there. Over the Mahakumbh, senior Congress leader Hussain Dalwai has triggered a storm with his comments that people taking a dip at the Sangam in such large numbers, the area would become unhygienic and diseases could spread on a large scale. He in fact also compared Kumbh arrangements with those in Hajj in Mecca, saying the UP government should make similar arrangements in Prayagraj. कुंभ मेला में स्नान करने के बाद मेरा सब पाप धुआ जाएगा, साफ हो जाएगा और मैं निष्पाप बन जाऊंगा, ऐसा लोगों को लगता है। ये उनकी धारणा है, लेकिन उसके जो इंतजाम ठीक ढंग से करना चाहिए वो नहीं हुआ। बड़े पैमाने पे लोग नदी में जाते हैं, गंगा नदी में, गंगा माई में स्नान लेते हैं, तो मेरे ख्याल से कितनी गंदगी होती होगी। इसकी वजह से यहाँ बड़े पैमाने पे तो बीमारियां फैल जाएंगी। हज के लिए एक दफा गया था, 2 दफा मैं इसके लिए भी गया था। मेरे ख्याल से वहाँ जिस तरह से इंतजाम होता है ना, वैसा यहाँ भी इंतजाम करिए ना। The BJP came down heavily on the Congress leader, saying that the remarks show the Congress party's anti-Hindu mindset and also reminded the party of the previous statements that have been made by the India bloc leaders insulting Hindus and Sanatan. They said that this was the anti-Hindu DNA of the opposition. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई जी ने बहुत ही विवादास्पद और बेहद ही आपत्तिजनक बयान दिया है महाकुंभ को लेकर। कहते हैं कि महाकुंभ अनहाइजीनिक होता है, वहां पर बीमारियां फैलती है, और कहते हैं कि महाकुंभ की अरेंजमेंट हज के अरेंजमेंट की तरह होनी चाहिए। हज का पूरा सम्मान है, पर इस प्रकार से ये टिप्पणी करना कांग्रेस की सनातन हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। हिंदू को और हिंदू आस्था को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, यही इनकी प्रणाली। तो ये हिंदू विरोध का डीएनए है। And there's been no condemnation of the remarks that have been made by the Congress leader, either from within the party or even the allies. In fact, Samajwadi Party leaders only joined in and continued to say that arrangements had not been done well for the Kumbh Mela. In fact, the Samajwadi Party slammed the Yogi government, saying while 6,400 crores had been spent on the Kumbh, facilities for the Aam Aadmi Party were lacking. हजारों करोड़ों लोग हमेशा आते थे, कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं, पर जिस तरह से इसको पूरे एक इवेंट की तरह बना दिया गया। सनातन धर्म में ये आस्था का विषय है, पर राजनीतिक रूप से जिस तरह से उसको इवेंट बना दिया गया और नए नए आंकड़े रोज प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो भी श्रद्धालु जिनकी आस्था है वो आ रहे हैं वहां पे, उनकी व्यवस्था वो वहां दर्शन करें और सकुशल अपने घर जाएं, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी। When the Uttar Pradesh government is spending more than 6,400 crores on the Mahakumbh, I think they should be more worried about the facilities that is being given to the common man. The health facilities especially, we have seen people sleeping in open areas, and we have seen people complaining about the sanitation, etc. We have seen a fire breakout. I think the government should be more worried about the facilities of the common man rather than building 280,000 square feet of tent from Germany for the UP cabinet. That is not done. I think the common man has to be given the first preference.